Hello students and welcome back to my YouTube channel Education Point. As we are discussing the chapter, very important chapter of class in CBSE board, that is reflection of light. बच्चों previously we have discussed very much about the reflection of light. This will be the last portion for the reflection of light. If you haven't seen the part of the rest portion, just go. I have given the link on the description, part 1, part 2 and part 3, where you will read about the whole scenario of the reflection of light. The mirror, plane mirror, spherical mirror, real images, virtual images, what are the laws of reflection also. So today we are going to discuss about the very last topic, that is convex mirror. It is also a type of a spherical mirror. We have two type of spherical mirror, that is concave mirror and convex mirror. Okay, so today we are going to discuss about the convex mirror, and also the convex mirror is said to be a diverging mirror also. बच्चों just don't get confused on that, what is diverging mirror and what are converging mirror. I am going to write here concave mirror is said to be converging mirror. Why it is said to be a converging mirror? Because in concave mirror, whenever a ray of light falls on a surface, it gets converged to a point. We have seen एक ही पॉइंट पे जाकर के मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. ओके, but in the case of convex mirror, whenever a ray of light strikes the surface of a convex mirror, it gets diverges towards the medium. So we will see about the convex mirror. Okay, let us draw convex mirror. In a convex mirror, this portion is a silver polished and this is the reflecting surface. This one is the reflecting surface and this one is a silver polished surface. Okay, so whenever a ray of light comes, it strikes the surface and it goes through it. So basically this is a convex mirror. Here we have pole, focus and center of curvature. In convex mirror, we have the focus and center of curvature on the right portion of it, because whenever we see a spherical mirror, it is a part of a convex mirror. So this will be the center of curvature, of course, and this will be the focus of it. But in case of concave mirror, let us differentiate now. But in case of concave mirror, this one is the silver polished surface, this one was the reflecting part. Here we have pole, the mirror will be like this, so this will be the center of curvature and this will be the focus. Okay, so this is the difference between concave and a convex mirror. In concave mirror we have focus and center of curvature on the left hand side, but in a convex mirror we have a focus and center of curvature on the right hand side. Okay, so let us discuss about the four rules what we have read earlier for the concave mirror. Now we will read about all those four rules regarding convex mirror. So our second topic is rules for obtaining images by convex mirror. We have read about the convex mirror, so this is the second part. Okay, rules. Now rule number 1, what was the rule number 1? We have read that whenever a ray of light is parallel to principal axis, it always get passes through focus. वही रूल वही प्रिंसिपल को फॉलो करना है, बस जो रे डायग्राम है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्यों हो रहा है? क्योंकि मिरर चेंज हो रहा है. ओके, लेट अस शो. Okay, so this one is the pole. Now ray of light is parallel to principal axis, this one is for principal axis. Now after reflecting, after striking the mirror, it diverges like this. So we have to now form the image. So as the rule says, whenever a ray of light is parallel to principal axis, it always passes through focus. तो जब मैं इस डाइवर्जिंग रे को एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ ऐसा, तो ये जहां पास भी प्रिंसिपल एक्सिस को ये कट करता है, वो पॉइंट मेरा कौन हो जाता है? फोकस होता है. सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर. So this one is the very first point. Please note it down that whenever a ray of light is passing is parallel to principal axis, it always passes through focus of a convex mirror. Okay, so this was the very first rule. Now let us discuss about the second rule. Again,
Draw the ray diagram of it. Now, whenever a ray of light falls on a convex mirror, and when we extend this, it passes through focus. So this is the center of curvature. So whenever a ray of light is being striking on a focus, it always gets parallel to the principal axis. This we have read about it. ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, ठीक है? ये आपका बेसिकली पोल है. So whenever a ray of light is falling on the convex mirror at focus, it always gets parallel to principal axis after reflection. Okay. So this was our rule number 2. Please note it down. ये रे डायग्राम बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये रे डायग्राम आपको पता नहीं होगा, आप आगे न्यूमेरिकल का जो डिफरेंट पोजीशन है उस पर आप नहीं बना पाओगे. So we will discuss about the third rule. What was the third rule? That whenever a ray of light is passing through center of curvature, whenever a ray of light is passing through center of curvature, after striking the mirror, it gets reflected on its own path also. सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होता था, ये हमने कॉन्केव मिरर पे देखा है. अब कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं कि कैसे सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट होता है. ओके, लेट अस ड्रॉ दिस. बच्चों अगर आप लोगों को कुछ चीज ब्लर दिख रही होगी तो प्लीज आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं वही जो मैं बोल रहा हूँ वहीं पे वही लिखने वाला हूँ. तो जो मेरा डिक्टेशन है आप प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा. ओके, सो नाउ व्हाट सेज whenever a ray of a light is passing through center of curvature, let this is the ray. When we extend this ray, it gets passes through center of curvature. So whenever a ray of light is passing through center of curvature, it gets reflected back on its own path. ठीक है, ये हो गया तीसरा रूल आपका. प्लीज नोट इट डाउन. ये हम एक्सटेंड करके जो बता रहे हैं वो अपीयर करा रहे हैं. बेसिकली हम अपीयर करा रहे हैं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर का जो मैकेनिज्म है या जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलता है कि वो इमेज को डाइवर्ज कर देता है. लेकिन हम जो रे हैं, सॉरी रे को डाइवर्ज कर देता है, लेकिन हम जब उस रे को ही एक्सटेंड करके देखते हैं पीछे पॉइंट पे, तो हमारा रूल सेटिस्फाई होता है कि यस इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यस इट इज पासिंग थ्रू फोकस. ओके, नाउ द वेरी लास्ट रूल. लास्ट रूल क्या बोलता था कि whenever a ray of light strikes the pole, it gets reflected with the same angle. तो चलो बना देते हैं एक पोल से और ये रिफ्लेक्ट हो गया सेम एंगल, क्योंकि इसको मिरर के पीछे जाना ही नहीं है, बाहर ही बाहर काम हो गया, इसलिए यहाँ पे कोई हमें अपीयरेंस दिखाने की जरूरत नहीं पड़े. सो दिस इज बेसिकली आई, दिस इज बेसिकली आर, आई इज इक्वल्स टू आर. ठीक है, सो दिस वाज माय रूल नंबर 4. तो हमने 4 रूल देख लिए टोटल. रूल नंबर 1, whenever a ray of light is parallel to principal axis, it will pass through focus of a convex mirror. Rule number 2, we have seen whenever a ray of light is parallel to principal axis, it will pass through focus. Whenever a ray of light is passing through focus, it gets parallel to principal axis after reflection. तीसरा रूल हमने ये देख लिया कि whenever a ray of light is passing through center of curvature, it gets reflected along its same path, along the same path. और फोर्थ रूल हमने देख लिया, whenever a ray of light is striking the pole, it gets reflected by the same angle on the same medium. Okay, so this was our rule. 4 rules what we have read earlier for the concave mirror. Now we have read about the convex mirror. Okay, so in the concave mirror we have read about the different position of the object, and we have seen the different position of the images also. Along with that we have read about the nature also and size also. So here we will also read about the convex mirror, but we have just only 2 conditions on it. Let us discuss that where the objects can be placed regarding convex mirror. मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक पहले convex mirror बना देता हूँ यहाँ. ये आपका है एक पोल बन गया. अब कॉन्वेक्स मिरर के इधर तो कुछ है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन कहाँ मैं रख सकता हूँ. कॉन्केव मिरर में क्या इधर था सब चीज,
और यही रिफ्लेक्टिंग पोर्शन था। अब इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन यही है, लेकिन इधर तो कुछ है नहीं आपके पास, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका यहाँ मिलता है, बराबर। तो आपके पास दो ही चीज कंडीशन बचती है यहाँ पर, एक पोल है, अब इधर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। एक तो ऑब्जेक्ट आप पोल और इनफाइनाइट के बीच में रख लो, एक ऑब्जेक्ट आप केवल इनफाइनाइट पे रख लो, तो ये आपकी दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो बस मैं पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने जा रहा हूँ, वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो उसकी मुझे इमेज कहाँ पे मिलेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा हमारे पास होता था नेचर, और चौथा होता था साइज। ओके, वी विल सी बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि पोल और इधर हमारा इंफिनिटी है, पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो, चलो कहीं पे भी रख देते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे रख दिया, आप कहीं भी रख सकते हो, यहाँ पास कहीं पे भी रख दो, आपको इमेज वहीं पे मिलेगी यहाँ पे मिलेगी। ओके, so whenever the object is between pole and infinity, the ray of light goes like this. Okay, after this it will diverge towards it whenever, अब ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। अब दूसरा हमने देख लिया कि अगर मैं इस पे देखूं कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती तो क्या होता, ये इसी पे ही हो जाती वापिस। नाउ हमें इमेजेस को अपीयर कराना है, क्योंकि हम रेस को एक्सटेंड करते हैं, हमें मालूम है। ओके, it passes through focus, we know that, and this will be what, passing through center of curvature। देखो हमें इमेज कहाँ पास मिल रही है, पोल और फोकस के बीच में मिल रही है, यहाँ कहीं पे मिल रही है मेरे को इमेज, ये भी ए डैश, ये हो गया बी डैश। अब ये उल्टा क्यों नहीं मिला मेरे को, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, कॉन्केव में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रहा था, इसलिए मुझे इमेज कैसी मिल रही थी, इन्वर्टेड मिल रही थी। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया यहाँ पास कि whenever the object is between pole and infinite, the image is formed between pole and focus, ठीक है। हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही इमेज मिलेगा मेरे को। अब नेचर कैसा इमेज का, क्योंकि सीधा सीधा है, अपीयर करा है, तो जो अपीयर इमेज होती है उसको मैं बोलता हूँ हमेशा वर्चुअल आर्किटेक्ट। साइज कैसा है भाई, ये इतना बड़ा, ये इतना सा, तो क्या हो गया, डिमिनिश्ड इन नेचर हुआ, डिमिनिश्ड इन नेचर हुआ, बहुत छोटा सा था। So please student pause the video and note it down. The very first position of object, very first position of image, nature and size of it. चलिए अब सेकेंड पे बात करते हैं, सेकेंड पे क्या होगा। Second condition, again just draw the convex mirror and this will be the pole of it. अगर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख सकता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा इनफाइनाइट पे। दो ही कंडीशन है मेरे पास, एक पोल और इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी और पोल के बीच में मैं रख के देख चुका हूँ, एक इन्फिनिटी पे रख के देखता हूँ तो क्या होगा। और हमने कॉन्केव मिरर में ये चीज पढ़ा है कि अगर जब भी ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनाइट पे होगा, वो हमेशा कहाँ मिलेगा, फोकस पे ही मिलेगा। चलो यहाँ भी फोकस पे ही मिलने वाला है, कैसे मिलेगा बस वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, और उसका नेचर कैसा होने वाला है और उसकी साइज कैसे होने वाला है, चलो देखते हैं। अब इंफिनिटी से हमारे पास कैसी रेज आती है, हमको मालूम है कि इन्फिनाइट में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर कोई रेज पैरेलल जाती है, इन्फिनाइट तक जाती है, तो इन्फिनाइट से भी कैसी रेज आती होंगी, पैरेलल ही आती होंगी। ओके, तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं दो पैरेलल रेज है, मान लो एक यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, एक कुछ ऐसा स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, दो मेरी पैरेलल रेज हैं, और अगर दो मेरी पैरेलल रेज अगर जा रही हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, सपोज कर लेता हूं, और एक मेरी पोल से पास हो रही होगी, तो ये दो रेज है मेरी जो आ रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो वापस इसी में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, पोल वाले में क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा,
और जब ये रिफ्लेक्टेड बैक होगा, जब मेरा फोटो, एक मिनट मैं इसको क्लियर तरीके से बना दूं ताकि समझ में बहुत अच्छे से। ठीक, this is the ray and this is the reflected portion of it. लो, ये हमारा पोल है। अब हमने देखा, अब क्या होने वाला है, ये चीज यहां से पास हो गई, ये चीज यहां से पास हो गई, लेकिन जब मैं इसको आगे जा करके मैं जब देखता हूं तो यहाँ पे मिलता है, मतलब ये कौन सा पॉइंट है आपका, फोकस पॉइंट। इमेज कहाँ पे मिली आपको, फोकस। अब वहां पास इमेज और यहाँ पास इमेज में कैसा होगा, बहुत छोटा सा इमेज होगा। तो whenever the object is at infinity, the position of image is at always focus. नेचर कैसा है बेटा इसका, नेचर कैसा है इसका, वर्चुअल है, क्योंकि हमने अपीयर करवाया, एक्सटेंड किया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसी है इसकी, अब इन्फिनाइट में तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, हमें मिला इतना सा, तो क्या लिखूंगा, डिमिनिश नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये हमारी दो कंडीशन है, इन दो कंडीशंस पे हमें बात करनी थी कॉन्वेक्स के रिगार्डिंगली, क्योंकि और हमारे पास कोई कंडीशन नहीं बचती जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रख करके देखूं। कॉन्केव में 6 कंडीशंस थी, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही कंडीशन है। सो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ इमेज, द नेचर एंड द साइज ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट, रूल्स पढ़ लिए हमने, सब चीज पढ़ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। एक न्यूमेरिकल बताता हूं मैं, उसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाओगे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला के बारे में बता दूं। मिरर फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया होगा कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, दैट 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon v। वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे बस मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ताकि आप मैथमेटिकल सॉल्यूशन पार्ट तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। f का मतलब फोकल लेंथ, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब इमेज डिस्टेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ that f is focal length of the mirror, u जो है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v जो है आपका इमेज का डिस्टेंस। बेसिकली फोकल लेंथ की जो यूनिट होगी सेंटीमीटर में की होगी या मीटर में गिवन होगी। बेसिकली हम आजकल सेंटीमीटर में ये करते हैं, ठीक है। अगर मीटर मीटर में दिया हो तो पहले आप देख लो भैया सबका यूनिट सेम है कि नहीं है, तो आंसर आप मीटर में ला सकते हो, ठीक है। आगे मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख देता हूँ। मिरर फॉर्मूला के साथ हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, कि लीनियर मैग्निफिकेशन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। एक ये फॉर्मूला देखे थे, एक हमने देखा था m का फॉर्मूला h2 अपॉन h1 भी होता है, और एक हमने फॉर्मूला ये भी देखा था कि h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन u के इक्वल होता है। क्योंकि ये दोनों टर्म मैग्निफिकेशन के हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे। तो अब मैं न्यूमेरिकल्स बात करने वाला हूँ, जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक इमेज फॉर्मेशन या एक रियल डायग्राम भी मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे हुआ क्या हुआ है ना। अब प्लीज ये नोट डाउन कर लो। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आपको समझा दूं कि कॉन्केव में कैसे करना है और कॉन्वेक्स में कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, हमने एफ यू और वी की बात तो कर ही ली है, मैं यहाँ पे H2 के बारे में भी लिख देता हूँ और H1 के बारे में भी लिख देता हूँ। H2 मतलब कौन होता है हमारा, हाइट। हाइट किसकी, इमेज की हाइट। H1 यानी कौन हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ here we will say about the concave mirror, here we will say about the convex mirror, कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में क्या क्या फर्क आएगा। कॉन्केव का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है,
ऐसा होता है पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इन पे क्या होने वाला है देखो, मैंने कहा था कि जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल के रेफरेंस में होगा। पोल से लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव साइन और पोल से राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव। यानी कि कॉन्केव मिरर में हमेशा आपका फोकस हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, और जो ऑब्जेक्ट है वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि आप यहीं पे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो और यहीं पे आपका फोकस होता है। तो हमेशा फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट कैसा होगा आपका, हमेशा 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 नेगेटिव होगा। इधर देखते हैं, फोकल लेंथ पोल से राइट साइड की तरफ है तो इसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट को तो मैं यहीं पे प्लेस करता हूं तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की, यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस मिलता है। कॉन्केव में हमने देखा कि 5 अलग अलग कंडीशंस पे हमें ऑब्जेक्ट मिरर के सामने मिला है ना, और एक लौती ऐसी कंडीशन थी जब हमें यहाँ पे आकर के वर्चुअल इमेज मिला था, यानी कि इमेज की बात। तो जो v की वैल्यू है वो चेंज होते रहेगी, ठीक है, v की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होते रहेगी। जब इधर आ गया मिरर में तो नेगेटिव हो जाएगा, जब उधर चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में v की वैल्यू कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा हमको इमेज यहीं पे मिली है। दो ही कंडीशन तो थी बस, एक बार हमको फोकस में मिली थी, एक बार पोलर फोकस के बीच में मिली थी। तो इसको प्लीज लिख लो आप लोग। आपको ये याद रहना चाहिए कि कौन सी वैल्यूज को कैसा लेना है। तब तो आप क्वेश्चन पढ़ के गिवन डेटा लिखोगे और वैल्यू पुट करके तीसरी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। हाँ, ये भी मैं बता दूं आपको, कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्केव, हाँ, H2 और H1 किसके लिए, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे, हाइट के लिए मैंने क्या बोला था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई चीज होगी तो पॉजिटिव होगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हमेशा कौन होगा, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, यानी कि H1 पॉजिटिव होने वाला है। H2 का वैल्यू क्या होगा, वेरी होता रहेगा। हमें 5 बार H2 नीचे मिला है, एक बार H2 हमें ऊपर मिला है, बराबर। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू चेंज होगी, लेकिन इसके केस में ऑब्जेक्ट भी ऐसा मिला और इमेज भी हमको सीधी मिली, दैट इज वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। तो एक ये एक्सपेक्ट नोट कर लो, ठीक है ना। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं लिख लेता हूँ बोर्ड पे, देन फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आप इसको पॉज करो और नोट डाउन करो। ओके बच्चों, सो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, दैट फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ अ इमेज फ्रॉम व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of a focal length 10 centimeter। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये कौन से मिरर की बात कर रहा है, कॉन्केव मिरर की बात कर रहा है। तो पहले मैं गिवन डेटा लिख दूं ताकि मैं अपने साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर सकूं। गिवन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें साइज निकालना है, नेचर निकालना है, पोजीशन निकालना है। कब, व्हेन ऑब्जेक्ट की साइज मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट हुई यहाँ पर। ऑब्जेक्ट की साइज मतलब किससे डिनोट होता है, H1 की वैल्यू किससे गिवन है, 1 सेंटीमीटर, ओके। सेकंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, 15 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 15। कॉन्केव मिरर है इसलिए मैं ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसा लूंगा, नेगेटिव लूंगा, ओके। एंड फोकल लेंथ भी दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर का भी फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन हो गई, ओके। अब मुझे क्या निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है और इसकी पोजीशन निकालनी है। पोजीशन का मतलब क्या होता है, आपको v निकालना है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस। तभी तो हमें पता लगेगा कि इमेज कहां पास बन रही है, और इमेज एक बार कहां पास बन रही है तो हम बता देंगे इसका साइज कैसा, इसका नेचर कैसा। कैसे बताएंगे उसको हम आगे देखते हैं। सो बाय द गिवन फॉर्मूला वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चों, दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हमको पता है। बस आप वैल्यू प्लेस कर दो। अब वैल्यू यानी कि कैसे प्लेस हुआ, 1/-10 f का वैल्यू
1 अपॉन वी तो निकालना है, प्लस 1 अपॉन क्या हो गया ये -50। अब यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, मैंने इसको एक साथ ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। तो अब देखूंगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। और हम डिनोमिनेटर में कभी भी नेगेटिव साइन को नहीं रखते हैं, इसे हम ऊपर भेज दिए, दैट इज -1 अपॉन 10, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 50, यहाँ तक हो गया। अब हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो v को यहीं रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो गया -1 अपॉन 10, ये नेगेटिव इधर आकर के पॉजिटिव बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v, ओके। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया इसका 30। तो जब एलसीएम 30 आ गया, अब आपको इसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। आगे देखते हैं, आया -1 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v। तो जब रेसिप्रोकल करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे, -v इज इक्वल्स टू 30, यानी कि v का वैल्यू कैसा आया बच्चों, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पोजीशन पता कर ली कहाँ पास है, अभी हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है कि हमको यहाँ पे प्लेस करना है। अब पोजीशन कैसे पता करूँ मैं, ओके। पोजीशन पता करने के लिए मैं यहाँ पे आपको रे डायग्राम से बताता हूँ कि कैसे पोजीशन पता करते हैं। कॉनकेव मिरर बना लो, ओके। कॉनकेव मिरर आपने बना लिया, क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना ड्रॉ द रे डायग्राम, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ये आपको पीछे काम करना है, ठीक है। ये अब आपने यहाँ पे पोल बना लिया, अब आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, फोकस कहाँ कहाँ पास है, आप पहले ध्यान से देखो। पोल के सबसे पास कौन होता है, फोकस। फोकस की वैल्यू कितनी है 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है -10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है 15 है, मतलब इधर होगा और कहीं पास, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, बना दो भाई ऑब्जेक्ट, ये ए ये बी, मतलब ये यू की पोजीशन है, सिंपल सी बात है। और यू पोल से कितना दूर है 15 सेंटीमीटर दूर है, माइनस मेंशन मत करो, बस ऐसे लिख दो, ओके, ठीक है। याद रखना, याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, हमने रिलेशन पढ़ा था, रेडियस सॉरी दैट फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, ये मैंने पार्ट 2 में बताया है, ठीक है। फोकल इज इक्वल्स टू r/2। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यू फोकस की होती है उतने डबल वैल्यू में आप किसको रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। f की वैल्यू भी कितनी है यहाँ पे 10, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किसके किसके बीच में दिख रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में दिख रहा है, क्योंकि फोकस यहाँ से 10 है, ऑब्जेक्ट 15 है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने निकाल लिया कि जितना फोकस होगा उसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब आपको अपनी टेबल याद रखनी है, जो मैंने पार्ट 3 के लास्ट में बताया है कि whenever the position of object is between focus and center of curvature, image always forms behind the mirror। तो आपको इस आंसर के कंक्लूजन में क्या लिखना है, आपको क्या क्या निकालने बोला है, पोजीशन, नेचर और साइज। आप लिख लो पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, और आपकी क्या बोलना चाहिए, साइज ऑफ इमेज। पोजीशन, इमेज कहाँ मिल रही है मेरे को, अब देखते हैं इमेज कहाँ पे मिल रही है। इमेज की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर क्या होगा, इधर कहीं पे होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, मतलब यहाँ कहीं पे कौन है तुम्हारा V है, मतलब C के पीछे मिल रहा है। यही तो हमने पढ़ा है कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, हमें इमेज हमेशा कहाँ मिलेगी, C के पीछे, यानी कि क्या होगा, आपको क्या लिखना है सेंटेंस में, बियॉन्ड C, ओके। नेचर कैसा होता है, इससे तो बड़ा ही मिलेगा, तो क्या लिखूंगा, सॉरी नेचर बोल रहा हूँ, नेचर कैसा मिलेगा, उल्टा मिलेगा, क्योंकि v का वैल्यू कैसा है नेगेटिव। अच्छा ये भी याद रख लो, यहाँ से भी समझ सकते हो, जब भी इमेज का वैल्यू नेगेटिव आए समझ लेना नेचर कैसा मिलेगा, रियल और इनवर्टेड। साइज कैसी है एंड लार्ज,
आप रे डायग्राम बना के भी देख सकते हो यहाँ पर कि जब भी फोकस इससे गया, ये इससे गया, जब ये फोकस से पास हुआ, ये इधर से पास हो गया, तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रहा है, ठीक है, और इससे बड़ा ही मिल रहा है। ओके, तो हमने ऐसा बनाना है न्यूमेरिकल, और अगर बोलता है इसमें कि रे डायग्राम बनाना है तो ये आपको रफ में नहीं करना है, ये आपको फेयर में करना है बस, ठीक है। तो ये बहुत ईजीएस्ट तरीके से बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही है। हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस कर सकते हैं, बट आप लोग प्रैक्टिस अपनी चालू रखो कि फोकल लेंथ कैसे लेते हैं, इमेज कैसे लेते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। पार्ट 4 ये आ गया है, पार्ट 4 आप देख लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा, इससे थोड़ा सा हटके होगा, उसमें हम लोग लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों प्लीज आप लोग नोट्स बनाओ, नोट्स के साथ साथ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करो, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझ तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी मैं डाल दूंगा अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है आप बिल्कुल हेजिटेट ना करते हुए आप मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो फाइनली हमारा खत्म होता है, जिसमें हमने सारा चीज देखा है, प्लेन मिरर से लेकर के लॉस से लेकर के कॉन्केव कॉन्वेक्स, सारे रूल्स रेगुलेशन, न्यूमेरिकल भी देख लिया, कब किसको पॉजिटिव कब किसको नेगेटिव लेना है। तो बार बार आप अपनी चीज़ों को नोट्स बनाते रहें और इस चीज़ को याद करने की कोशिश करें। टेबल बेसिकली आप बहुत अच्छे से याद करना, कॉन्केव का भी और कॉन्वेक्स का भी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें जो अभी लॉकडाउन की वजह से अपन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये जो पेंडेमिक हमारे सामने आया है कोरोना वायरस का, ये हमें काफ़ी हद तक एजुकेशन के लाइन में पीछे लेकर के जा रहा है, बट वी विल मेक ऑल अवर work very hard so that you can approach everything regarding all your subjects, regarding science, regarding maths, or whatever subject you want to learn. We will make the video of it. Okay, so thank you for watching the channel Education Point. Please like and subscribe for it. Thank you so much. Take good care of yourself.